This is for the audience. Please keep on posting your questions. We have this opportunity, so please don't miss whatever queries, doubts you have. Dr. Nemish would be helping you to answer the same. So you can post here as well as people who have joined us on YouTube. A very warm welcome, and please do post your questions in the chat and we will take each question. Ma'am, we can start, ma'am. Ganesh, let's wait for 2 more minutes if people can join in. Just 2 more minutes and we'll start. Good morning, everyone. A very warm welcome to each one of you who took out time to join this session. Thank you so much. And so here you can see the opening page on the slide. It is of Prometheus, the Greek god, and the Zeus eagle. So before going on to the slide, I just want to start with that the famous psychologist William James has rightly said, is life worth living? It all depends upon your liver. And that is the importance of liver. That's what we want to talk about today. So it's not that in recent times, liver has become the talk of the town, or we have given more importance to liver now. If we go back to pre-medieval era, Babylonian times, we can see in the literature that liver was the center. Today, when we talk about, we say that heart is the center. We talk about love stories, we talk about poetries and etc. We said, oh, he had a heart failure. Oh, his heart was broken. But it was not the case earlier. So today, when it is cardiocentric society, earlier it was hepatocentric society. And during those times, it was like even the literature, if you go back, William Shakespeare and everyone has written about liver. There were poems which were published on liver, like the Ode to Liver, which was a very famous poem. So if we talk about ancient Greek mythology, here you can see that Prometheus is there, the one who's lying down, and this is the eagle, which was Zeus eagle. So the punishment that was given to Prometheus was he was not given death directly. But it was that the Zeus eagle would come every day and feed on the part of liver. So what used to happen was the eagle used to come every day, feed a portion of the liver of Prometheus, and every day the liver used to regenerate. So this was like an infinite vicious circle. What could stop was either the death of the eagle or Prometheus. But this punishment was horrendous. And this is what, so even the people in earlier times knew that liver can regenerate. Isn't it fascinating that an organ in human body that can regenerate? And to be very specific, it is the only organ in human body which is able to regenerate. So, good morning, everyone. It's a pleasant Saturday morning, and on behalf of Triumph, this is your host Poonam, and I welcome you all here. So, before we move on to our topic, as I have told on behalf of Triumph, I just want to give a very brief introduction of Triumph, who we are, and Mohan Foundation, who is our parent partner. So, Triumph is Transplant Recipients of India and Organ Failure Patients, a movement to provide hope. It is a patient support group under the umbrella of Mohan Foundation, where Mohan is an acronym for Multi Organ Harvesting Aid Network.
And this is the website of Triumph. You can visit this website to know what we are doing actually in the patient support. We believe that whether it is a patient or a caregiver, they have a journey. And in this journey, you are not alone, because there are people who have been through this. Someone had an organ failure, or someone is going through an organ failure, and someone had a treatment post organ failure, is a transplant recipient. So we want you to experience their journey and learn from their journey, their experiences, and feel that you are not alone. We are there. Apart from that, we also work on advocacy of the issues for patient advocacy, basically. For example, insurance and all other current scenarios where we are working upon. We also believe that awareness is important. Awareness in both aspects. One is gift of life, that is, you have to pass on the organs. The organs are needed here on earth. So please, we have to make people aware that donate organs, whether it is live donation, but we are more focused toward cadaveric donation, that is disease donation. And that is the main motto of Mohan Foundation also, which was started in 1997 by Dr. Sunil Shroff, who had then returned from UK, and it was started in Chennai. And the mission is to ensure that every Indian who is suffering from end-stage organ failure is provided with a gift of life, that is organ. And the other aspect is improving the quality of life. Mohan Foundation also works on different aspects along with the public, along with the government, in improving the rules and regulations, providing new rules, and making people aware. I'll not go into much detail. For details, please visit the websites. These are www.mohanfoundation.org and Triumph is triumph.org. And how can we not thank SBI Foundation, who is the sponsoring partner for us? So it is through the sponsored partnership of SBI Foundation, we are bringing this talk. So I'll not take much time of yours. And I just believe that we need to learn more about how to keep your liver healthy, because liver is at the center now. Liver is the factory. Liver is doing everything that you can think of, much more dedicatedly. It is involved in metabolism. It is involved in keeping your sugar levels correct, in your hypertension levels correct. Everything the liver is involved. So, not taking much time and not coming in between the guest and you, I'll just ask Dr. Nemish to join us for this talk. And before that, I would like to introduce Dr. Nemish to you, a little about what Dr. Nemish does and a little bio about him. A very warm welcome, Dr. Nemish. Thank you. Good morning. Good morning. So Dr. Nemish is also professor, actually. So he is Professor Nemish N. Mehta and is currently the chairman of Center for Digestive Sciences and head of Department of HPB Surgery and Liver Transplantation at Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Jaipur, Rajasthan. Previously, he has served as co-chairman and chief transplant surgeon in the Institute of Surgical Gastroenterology, GIHPB Oncology and Liver Transplantation at Sir Gangaram Hospital in New Delhi, where he was instrumental in establishing liver transplantation program, which was majorly focused on living donor at Sir Gangaram Hospital and across many other centers in India over last 15 years. He comes with a very rich experience and publications also. So he has written 11 book chapters and published around 85 papers in peer-reviewed journals and delivered many lectures as an invited faculty in various academic meetings of IASG, IHPBA, ACRSI and LTSI. To his credits are
World's first living donor liver transplant with open heart surgery, that is dual transplant we call, in a child performing the first liver donor intestinal transplantation in India. Dual lobe liver transplantation, where two donors donate liver to a single individual. Liver transplantation in acute liver failure in pregnant women, and many such cases. I think if I start talking about it, the whole session would be about Dr. Nemish actually. And he is also currently serving as honorary treasurer in governing council of Indian Association of Surgical Gastroenterology and scientific committee chairman in Indian chapter of International Hepatopancreatobiliary Surgery Association, which is IHPBA. Over to you, Dr. Nemish. Thank And you it's so much. a pleasure to have you. I really welcome you here. Thank you. So just wanted to check if the slides are visible. Yes, sir. They are visible. Right. So good morning to you all. And as we have already heard Ms. Poonam speak about liver, it's one of the fantastic organs in your body. And let's try and learn why do we call it so fantastic and why should you love your liver? So it is the largest solid organ of your body. Where is it located? It is situated at the upper right side of your abdomen or belly. The usual color is darkish brown, and the normal weight of the liver is approximately 2% of your body weight. Liver being the largest organ of your body, it has many functions, and we will share a few with you in the next few slides. So the major functions of liver is to produce bile, which we call it as pith in common Hindi language. Pith is required for digestion of lots of fat, amino acids, ग्लूकोज जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए बाइल यानी कि पित्त का होना बहुत जरूरी है. लिवर ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस. आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बनाता है जिससे यू कैन फाइट विथ मेजर इन्फेक्शंस. जो भी दवाइयां लेते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं, हम बाहर का कुछ भी कचरा अगर आप बोले उसे तो हम खाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना, उस मेडिकेशंस को हार्मलेस बनाना, टॉक्सिन्स को हार्मलेस बनाना, ये लिवर का काम है. इसके अलावा इट ऑल्सो स्टोर्स आयंस, विटामिन्स एंड मेनी अदर मिनरल्स. हम अगर जानते हैं कि यूरिन निकलता किडनी से है, लेकिन यूरिया साइकिल होती है जहां जिसमें यूरिया बनता है, वो साइकिल लिवर में प्रोड्यूस होता है. सो सिर्फ बड़ा ऑर्गन होना itself is not enough for liver. It is one of the most important and major organ of your body, जिसमें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खुराक खाते हैं, खाने का पदार्थ खाते हैं, वो इंटेस्टाइन से होकर ब्लड के माध्यम से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, वो लिवर के थ्रू पास होता है. फिर वहां से वो आगे आपके हार्ट में या हृदय में जाके रेस्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट होता है. सो लिवर का फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे उसने एब्जॉर्ब करना है मेजर न्यूट्रिएंट्स. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब शुगर. जो भी हम मीठा खाते हैं, इमीडिएटली हमारी शुगर लेवल बढ़ सकती है, लेकिन अगर हम 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जब खाना खाते हैं, तो उस दरमियान, उस 6 घंटे दरमियान हमें ग्लूकोज, हमारे हर एक सेल को ग्लूकोज की जरूरत होती है. सो वो ग्लूकोज आता कहाँ से है? सो उस इनिशियल ग्लूकोज जो हम खाते हैं, मीठा जो हम खाते हैं, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर स्टोर करता है. और जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन करके उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और नॉर्मल सेल्स को प्रोवाइड करते ताकि हम अपना नॉर्मल काम कर सके. इसके अलावा सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. जो भी हम खाते हैं शरीर में, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारा उसको स्टोर करना, ये लिवर का काम है. नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन.
जैसे मैंने कि पहले बताया, जो भी हम पदार्थ खाते हैं इसमें से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालना और डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि उसको हार्मलेस बनाना, ये काम लिवर का है। ये सब करने के बाद इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, जैसे मैंने बताया, एंटीबॉडीज। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स कुछ होते हैं, हमारा जो खून होता है वो सही मात्रा में पतला या गाढ़ा रहना चाहिए। बहुत ज्यादा पतला होने से खून बह सकता है कहीं ज्यादा छोटी चोट से भी, और ज्यादा गाढ़ा होने से नॉर्मल प्रवाह यानी कि नॉर्मल फ्लो नहीं हो पाएगा। सो सही मात्रा में उसको गाढ़ा या पतला रखना ये लिवर का काम है, बाय प्रोड्यूसिंग कोएगुलेंट फैक्टर्स। सो ये अगर आपके स्क्रीन पे मैं दिखाऊं तो जो जो दाहिनी साइड के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है सिरोटिक यानी कि खराब लिवर, और बाई साइड पे जो दिख रहा है वो है नॉर्मल लिवर। सो ये रेडिश ब्राउन जो लिवर दिख रहा है ये नॉर्मल लिवर है, ये एक लिविंग डोनर का लिवर है, एक्चुअल इंट्रा ऑपरेटिव फोटोग्राफ है ये। और ये लिवर है जो सिरोटिक यानी कि सड़ चुका है। सो जब हम रीजेनरेशन की बात करते हैं तो ये नॉर्मल लिवर जो है वो रीजेनरेट हो सकता है, लेकिन ये लिवर जो नॉड्यूलर सिरोटिक हो गया है ये लिवर रीजेनरेट नहीं कर सकता। हम लिवर के बारे में इतना क्यों अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्यों जानना चाहिए? सो अगर आप देखें ग्लोबली लिवर डिजीज का बर्डन कहीं ज्यादा है। करीब 20 लाख पीपल एनुअली यानी कि पर ईयर उनकी डेथ होती है लिवर खराब होने के कारण, या तो सिरोसिस के कारण, या लिवर कैंसर के कारण, या वायरल हेपेटाइटिस के कारण। इन एडिशन टू दैट हम काफी सारे लोग अल्कोहल का पदार्थ का सेवन करते हैं जिसके कारण भी लिवर आपका खराब हो सकता है। और कई सारे लोग अल्कोहल का सेवन न करने के बावजूद भी ये उनकी कई बार डायग्नोसिस आती है कि आपको नॉन अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज है, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उससे भी आपका लिवर खराब हो सकता है। कई सारे लोगों ने इसकी लैक ऑफ अवेयरनेस यानी कि इसकी जानकारी न होने के कारण इसका सही इलाज सही समय पर नहीं कर पाए। डिजीजेस एंड रिस्क फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुअर लाइफस्टाइल, हमारी डाइट की जो प्रैक्टिसेस है, काफी सारे अभी हमारे पदार्थ जो हम सेवन करते हैं खाते हैं वो फैटी फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जो जंक फूड हो गया है, जिसके कारण ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। एंड कई बार जैसे मैंने बताया सब्सटेंस अब्यूज यानी कि अल्कोहल का सेवन, ड्रग्स का सेवन, कुछ ऐसे मेडिकेशन का सेवन जिसके कारण लिवर को डैमेज या हानि पहुंच सकती है। कुछ कुछ चीजें हम बचा सकते हैं जैसे वैक्सीनेशन से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब आपका लिवर खराब होता है क्या सिम्टम्स होते हैं उस लिवर खराब होने में? सो द सिम्टम्स ऑफ अंडरलाइंग लिवर डिजीजेज आर, एक, कई बार पता ही नहीं चलता आपको, एसिम्टोमेटिक यानी कि हमें लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। सेकंड, येलोनेस ऑफ द स्किन, इसको हम जॉन्डिस जिसे कहते हैं, पीलिया, जो आंखों में आपको दिख सकता है। और अगर पीलापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जॉन्डिस के लेवल बहुत बढ़ जाती है, तो पूरा शरीर, पूरी स्किन येलो हो सकती है। नेक्स्ट इज इची स्किन यानी कि प्रूराइटिस, हर एक स्किन में आपको खुजली कहीं ज्यादा हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जॉन्डिस के साथ एसोसिएटेड होता है क्योंकि जो बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स ये लिवर के थ्रू नहीं जा सकते और सारे ब्लड में आकर स्किन पर डिपॉजिट होना यानी कि जमा होना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उन आपको स्किन इचीनेस हो सकती है, खुजली हो सकती है। बिकॉज ऑफ जॉन्डिस, डार्क यूरिन, जॉन्डिस के कारण, पीलिए के कारण यूरिन भी कई बार पीला होता है, डार्क होता है। एंड पेल स्टूल्स यानी कि जो टॉयलेट हम पॉटी करते हैं वो पेल सफेद हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। अगर एडवांस्ड लिवर डिजीज होता है तो उसमें टायर्डनेस, वीकनेस, एग्जॉशन, फटीग यानी कि ज्यादा तकलीफ होती है, कुछ भी काम करने में जल्दी से थकान हो जाती है, जल्दी थक जाते हैं। अगर इसका सही समय पर इलाज ना करा जाए तो आगे चलकर उसको कंफ्यूजन यानी कि आपको ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही, किसने क्या बोला ये याद नहीं रह रहा, बोलने में स्लर्ड स्पीच हो सकती है,
जिसको इवेंचुअली हिपेटिक कोमा यानी कि लिवर के कारण जो कोमा होता है उसमें आगे एडवांस डिजीज में उसका कोमा में मरीज जा सकता है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसमें भूख कम लगना, इजी ब्रूइजिंग यानी कि छोटी मोटी चोट भी लग जाती है तो काफी हद तक खून वहां पे जमा हो जाता है, क्योंकि लिवर जो नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है वो नहीं बना पा रहा है। पेट में दर्द, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन एंड लेग्स यानी कि पेट में पानी भर जाना, पैरों पे सूजन आना, ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो लिवर डिजीज से पीड़ित जो व्यक्ति होता है इनमें ये कुछ लक्षण दिख सकते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, कई सारे मरीज ऐसे होते हैं जो एसिम्टोमेटिक यानी कि जिन्हें कोई लक्षण नहीं होता। मोस्ट ऑफ दिस लक्षण जो मैंने आपको बताए वो एडवांस्ड लिवर डिजीज में होते हैं। इसीलिए जब तक आप वेट करें कि आपको लक्षण दिख जाए या दिखना शुरू करे, उस समय तक वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एडवांस लिवर डिजीज को इंडिकेट करता है। अब आपको पता कैसे चलेगा, हाउ डू आई नो वेदर आई एम एट रिस्क फॉर लिवर प्रॉब्लम्स? सो यस, कुछ कुछ रीजंस है जिसमें आप लिवर के लिए रिस्क आपको प्रॉब्लम होने के लिए बढ़ सकता है। सो पहला है अल्कोहल का सेवन, दारू पीना, उसका सेवन करना कई सारे लोगों में लिवर प्रॉब्लम का मुख्य कारण होता है। दूसरा है ओवरवेट या ओबेसिटी या डायबिटीज का होना। सो ये डायबिटीज का होना पर से डज नॉट कॉज लिवर डिजीज, बट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अगर डायबिटीज को हम इग्नोर करें और उसको कंट्रोल में ना रखें तो ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी हमें प्रॉब्लम कर सकता है, जिसके कारण ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकता है और जो फैटी लिवर कर सकता है, जिसके कारण आगे चल के वो सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। नेक्स्ट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड हमारा खान पान, मीन्स ऐसी लाइफस्टाइल जहां आपकी कोई एक्सरसाइज ना हो, कोई वॉकिंग ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, और डाइट उसके साथ अगर हम जंक फूड ज्यादा सेवन करते हैं तो इट कैन लीड टू ओवरवेट एंड ओबेसिटी, जिसके कारण फैटी लिवर हो सकता है। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो रिलेटिव्स में होने के कारण, पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में होने के कारण, बिकॉज ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस वो इन किसी और व्यक्ति में ट्रांसफर यानी कि फैमिली में ट्रांसफर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड शेयरिंग नीडल्स, इससे हिपेटाइटिस बी और सी ये फैल सकते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों लिवर को खराब करने के काफी इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज केमिकल एक्सपोजर, अनप्रिस्क्राइब्ड एंड ओवरडोज ऑफ सम मेडिकेशन, यानी कि कुछ केमिकल एक्सपोजर से भी डैमेज हो सकता है लिवर को, एंड दवाइयां जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना करी हो, अपनी मर्जी से या ओवर द काउंटर ले रहे हो, या जो जो मात्रा में यानी कि जो डोज में प्रिस्क्राइब करा हो, अगर वो हम सही मात्रा में नहीं खा रहे हैं तो आगे चल के वो लिवर को डैमेज कर सकता है। अब सवाल आता है कि अगर लिवर को डैमेज हो रहा है तो हम कैसे स्क्रीन करें, इसे पता कैसे लगाएं कि हमारा लिवर नॉर्मल है या नहीं है? सो बेसिक चीजें हैं, एक है लिवर फंक्शन टेस्ट, जो खून के टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन और लिवर एंजाइम्स, ये हमें पता करना बताता है कि लिवर आपका नॉर्मल है या नहीं है। सो लिवर एंजाइम जिसको एसजीओटी एसजीपीटी कहते हैं या एएसटी एएलटी भी कहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स में एएसटी एएलटी लिखा हुआ आता है, कुछ रिपोर्ट्स में एसजीओटी या एसजीपीटी लिखा हुआ आता है। अगर ये ज्यादा उनकी वैल्यू एबनॉर्मल है, 2 टाइम ऑफ द नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़कर है, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। इसके अलावा कुछ मेजर फंक्शंस है जो सिर्फ लिवर बनाता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन और आईएनआर, ये 3 मेजर इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि लिवर को डैमेज है या नहीं है, क्योंकि ये 3 पदार्थ एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन और पीटीआईएनआर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उसका मेन प्रोडक्शन सिर्फ लिवर में ही होता है। इसीलिए अगर लिवर आपका सही काम नहीं कर रहा है तो ये इन तीनों की वैल्यू एबनॉर्मल होगी। देन कम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग फॉर हिपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस के बारे में हम आगे मैं बताऊंगा। ए, बी, सी, डी और ई, ये हेपेटाइटिस वायरस है। 5 मुख्य कारण के वायरस होते हैं जो अभी तक हमें एज अ मेडिकल फील्ड में आइडेंटिफाइड है। इनकी टेस्टिंग करनी जरूरी होती है। हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज अभी पॉसिबल है, ए का वैक्सीनेशन पॉसिबल है। तो इसीलिए अगर इसकी टेस्टिंग करी जाए तो इसका इलाज भी सही समय पर करा जा सकता है। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि सोनोग्राफी एब्डोमेन की, जो एक हमें रफ आइडिया देता है कि लिवर स्मूथ है या लिवर आपका, जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ बताया, खराब होना शुरू हुआ है या नहीं। ये सोनोग्राफी आपको आइडिया दे सकता है। देन कम्स फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन भी नॉन इन्वेजिव, यानी कि कोई उसमें सुई नहीं चुभनी है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के जैसे इसमें भी एक प्रोब रखा जाता है बॉडी पे, जिससे लिवर में कितनी फाइब्रोसिस, यानी कि लिवर सेल्स कितने खराब हो गए हैं, इसका हमें अंदेशा दे सकता है। इसके बियॉन्ड अगर लिवर डिजीज खराब हो गया है या डायग्नोज हुआ है तो आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद आइदर सीटी स्कैन और एमआरआई और लिवर बायोप्सी उसके बाद हम कर सकते हैं। सो जैसे मैं बता रहा था हेपेटाइटिस के बारे में, सो हेपेटाइटिस ए, जो ए और ई दोनों साथ में हम कंसिडर करते हैं, जो खान पान फीको ओरल रूट, यानी कि खाने के पदार्थ से या पीने के पानी जो इन्फेक्टेड होता है उसके माध्यम से आ सकता है। सो ईटिंग रॉ फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से हेपेटाइटिस ए और ई दोनों हमें हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो सभी लोगों ने स्पेशली बचपन में लगा देनी चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए यंग एडल्ट एंड बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। और 100 ऐसे मरीज जो सफर करते हैं हेपेटाइटिस ए से, उनमें से 1% मरीज को एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, जिसमें इमरजेंसी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। तो कई बार आपने सुना होगा कि लूज मोशन हो गया, गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो गया और उसमें किसी डॉक्टर ने लिवर ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट कर दिया, बट भाई वो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन था, जिसके कारण उस व्यक्ति को एक्यूट लिवर फेलियर हो गया, जिसके कारण लिवर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आ गई। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अगर आपने, आपके बच्चों ने या आपके यंग एडल्ट या छोटे भाइयों या बहनों ने नहीं ली है तो प्लीज हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन जरूर लगवाएं। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ नॉर्मल हाइजीन, सैनिटेशन, जिससे आप जो खान पान पदार्थ खा रहे हैं वो सही कुक्ड हो, सही धोया हुआ हो, और जो पानी का सेवन कर रहे हैं हम वो कंटामिनेटेड ना हो, फिल्टर्ड हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो। इससे हेपेटाइटिस ए और ई काफी हद तक रोका जा सकता है। देन लेट्स कम टू हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। सो हेपेटाइटिस बी और सी कैसे स्प्रेड करता है? इट कैन स्प्रेड वाया बॉडी फ्लूइड्स, जैसे मैंने बताया भी, इन्फेक्टेड ब्लड, सिक्रीशंस, यूज्ड सिरिंजेस जो आपके डिस्पोजेबल ना यूज करी हो या साफ ना करी हो, एंड टैटूइंग। कई सारे यंग लोग आजकल टैटूइंग के लिए जाते हैं, बट वो टैटूइंग के लिए जो नीडल यूज करी जाती है वो कई बार नीडल को साफ नहीं किया जाता, ऑटोक्लेव या स्टेरिलाइज नहीं किया जाता, जिससे अगर प्रीवियस व्यक्ति को जो टैटू लगाया उसको अगर हेपेटाइटिस बी या सी है तो आपको भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए बी वेरी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट इज अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज। जैसे मैंने बताया अल्कोहल के सेवन से काफी सारे मरीज को लिवर डिजीज, लिवर सिरोसिस हो सकती है। बट हमारे पास कई सारे ऐसे मरीज आते हैं जो अब बढ़ते जा रहे हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिनको डायग्नोज हुआ है कि जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते फिर भी उनको लिवर डिजीज हो रहा है। तो वो फैटी लिवर होने के कारण आगे बढ़ के सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया और इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है, जो सिरोसिस में तब्दील होकर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। अदर रीजंस आर हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, यानी कि लिवर कैंसर। यूजुअली लिवर कैंसर आइदर हेपेटाइटिस बी में पाया गया है या उन व्यक्ति में देखा जाता है जिनका लिवर ऑलरेडी खराब हो गया है,
जो सिरोटिक यानी कि स्कार हो गया है, इस स्कार टिश्यू में कैंसर डेवलप हो सकता है। दूसरे कुछ कारण है जेनेटिक एंड ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और ड्रग लिवर डिजीज। आज की तारीख में वन ऑफ द मेजर ड्रग लिवर डिजीज जो हम देखते हैं, या ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज जो देखते हैं, वो टीबी की दवाइयों के कारण भी हो सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीबी की दवाइयों का सेवन ना करें, बट टीबी, जो भी व्यक्ति टीबी की दवाइयां ले रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां ले रहे हैं, हर 15 दिन या महीने में आपकी लिवर की फंक्शंस की टेस्ट करें, और अगर वो एबनॉर्मल आते हैं तो प्लीज आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में ए और ई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब इवन दिस ट्रांसमिट्स फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग बर्थ, सो इसीलिए एट बर्थ यानी कि कोई भी बच्चे के जन्म के समय ही हेपेटाइटिस बी का वायरस का इन्फेक्शन जो वैक्सीनेशन होता है वो दिया जाता है, ताकि सभी बच्चों को हेपेटाइटिस बी अवॉइड हो सके। इसीलिए इसका भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो विच शुड बी टेकन एट बर्थ, जन्म के समय लेना चाहिए, और वो हर एक बच्चे को देना चाहिए। ये कमिंग टू हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस सी के भी, हालांकि सी के कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका ट्रांसमिशन मोड सेम एज हेपेटाइटिस बी होता है, जिसमें इन्फेक्टेड नीडल्स, बॉडी सिक्रीशंस एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस बी इट इज कॉल्ड एज डेल्टा वायरस, जो हेपेटाइटिस बी के साथ को एग्जिस्ट करता है, एंड इसमें हेपेटाइटिस बी के जो भी लक्षण होते हैं, जो भी कारण होते हैं, हेपेटाइटिस बी डी ऑल्सो सेम फॉलो करता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, वो है हाई टेम्परेचर यानी कि बुखार, फटीग यानी कि थकावट, पेन होता है पेट में, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख ना लगना, पीलिया होना, एंड नोजिया और वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, गले में नोजिया हो सकता है। सो ये एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। कमिंग टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस, अगर ये क्रॉनिसिटी में तब्दील, यानी क्रॉनिसिटी का मीनिंग है कि लंबे समय से इसका अगर इलाज ना करा जाए तो कई बार या तो कोई सिम्टम नहीं होता है, आपको पता नहीं चलता है, तब तक नहीं पता चलता जब तक डैमेज एडवांस नहीं हो जाता, लिवर डिजीज सीवियर नहीं हो जाता, तब तक कई बार आपको पता नहीं चलता। सो अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी किसी व्यक्ति को अगर है, और अगर उसकी नीडल लग गई या आपको नोन केस का एक्सपोजर हो गया, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर्स, गेट सम टेस्ट जो वो बताए, एंड अगर उसमें कुछ दवाई अगर सजेस्ट करते हैं तो वो दवाई लेना जरूरी होता है। कमिंग टू अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज, जो हम इतना डिस्कस करते हैं और आपने भी बहुत सुना होगा, इट इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लिवर डिजीज। दारू का सेवन, अल्कोहल का सेवन एक मेजर कारण है लिवर सिरोसिस का। इस अगर इसके साथ बाकी कोई रिस्क अगर ऐड हो जाता है, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, एंड पहले से कोई लिवर खराब होना, और प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक डिजीज, अगर ऐसा अगर उसमें ऑलरेडी किसी व्यक्ति को है और वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसमें उनकी लिवर डैमेज काफी रैपिड, मतलब बहुत तेजी से हो सकता है। कैसे होता है अल्कोहल की लिवर डिजीज के जो स्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? पहले वो एक अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर बनाता है, यानी कि उस लिवर जो हमने देखा था, अगर आपको याद हो, तो लिवर नॉर्मल जो उसका जो अपीयरेंस होता है वो रेडिश ब्राउन, उसको वो फैटी लिवर बना देता है, जिससे अल्कोहल रिलेटेड फैट बिल्डअप होता है उस लिवर में। देन उसके बाद सूजन होती है, हेपेटाइटिस होता है, स्कार टिश्यू जो नॉर्मल लिवर टिश्यू होता है वो स्कार होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, और आगे बढ़कर सिरोसिस हो जाता है, जो नोड्यूल या गठन जो मैंने आपको दिखाए वैसा नोड्यूलर लिवर बन जाता है। एक बार सिरोसिस हो गया तो उसमें आगे चलकर कैंसर भी बन सकता है, या अगर ये एडवांस बढ़ता रहा, ये आगे डैमेज बढ़ता रहा, कंटिन्यूअस रहा, तो लिवर फेलियर में भी तब्दील हो सकता है। अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज के अर्ली सिम्टम्स क्या है? भूख ना लगना, सिर्फ पेट में भारीपन लगना,
फटीग यानी कि मलेज होता है, टायर्डनेस होती है, नौशिया, डायरिया होना, जनरल अनफीलिंग होती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, रात को कई बार नींद नहीं आती। एंड जैसे जैसे लिवर इस चीज से जूझता रहता है, वो धीरे धीरे फिर जॉन्डिस यानी कि पीलिया होना, जैसे मैंने बाकी सिम्टम्स बताए, इचिंग होना, वजन लूज करना, मसल वेस्ट होना, पतले होते रहना, वजन कम होता जा रहा है, जिसमें फैट नहीं जा रहा, मसल वेस्ट हो रहा है, मसल्स कम हो रहे हैं, पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरना, नोज ब्लीड्स या गम से यानी कि आपके मुंह से या नाक से ब्लीडिंग होना, एंड कई बार पीरियड्स ऑफ कंफ्यूजन या मूड चेंज, ये भी एडवांस लिवर डिजीज का कारण या लक्षण हो सकता है। सिर्फ अल्कोहल ही लिवर को खराब नहीं करता, नॉन फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो हमने डिस्कस किया, वो भी उसके कारण भी लिवर खराब होता है, जो बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, कई समय से, कई सालों से फैट हमारे जो डाइट में हम लेते हैं वो एक्यूमुलेट होता है लिवर में, जिसके कारण फैटी लिवर हो जाता है। आगे बढ़कर वो सिर्फ फैटी लिवर से आगे बढ़ के स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी कि सूजन होना शुरू होता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं, जो आगे बढ़कर नैश यानी कि फाइब्रोटिक नैश हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया लिवर टिश्यू स्कार होना शुरू हो जाता है, और देन सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ओबेसिटी है, डायबिटीज है और हार्ट डिजीज है, और अगर इसका हमने सही समय पे इलाज नहीं कराया, तो आगे चल के ये सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। इसमें भी सिम्टम्स अगर आप देखें तो पीलिया, यूरिन पीला ज्यादा होना, पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टी हो सकती है, कंफ्यूजन यानी कि अर्ली कोमा के स्टेजेस, एंड इचिंग स्किन, इसमें भी ये हो सकता है। तो अब तक हमने बात करी कि लिवर खराब किससे होता है, बट हम लिवर अपना हेल्दी भी रख सकते हैं। सो ये कुछ टिप्स है जो हमें आइडिया देता है कि लिवर आपका कैसे अच्छा रखे। सो वन इज मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट। आपका डाइट सही मात्रा में हो, जो भी हम खाते हैं उसको मॉडरेशन में खाना चाहिए। लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल का जो कंज्यूम अगर आपसे ना बंद करा जाए तो अप टू अ सर्टेन लिमिट उसका कंजम्पशन कम रखे। सही मात्रा में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखे, पानी सही मात्रा में पिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, स्मोकिंग एंड ड्रग यूज ना करें, एंड जहां जहां वैक्सीन अवेलेबल है जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, अगर इनकी वैक्सीन अवेलेबल जो इसकी है, प्लीज इस वैक्सीन को डेफिनेटली ले। एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस यानी कि आप बैरियर यूज करें वेन एवर यू आर हैविंग सेक्स विथ अननोन पीपल। हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई लिवर, जैसे मैंने बताया, एडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मेंटेन गुड हाइड्रेशन। अगर आपके लिवर को प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, आपकी बॉडी में आपको आसार नजर आ रहे हैं, प्लीज गो अहेड एंड गेट योर चेकअप डन। अगर जरूरत पड़ती है तो रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं, अल्कोहल का सेवन सीमित रखें, हेपेटाइटिस ए और बी की के लिए वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। So I represent Mahatma Gandhi University and its hospital and medical college. So महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में काफी सारे उन्होंने स्टेट ऑफ राजस्थान में पहला ट्रांसप्लांट कराया, जैसे फर्स्ट कैडावर, फर्स्ट लिविंग डोनर, फर्स्ट कंबाइंड कैडावर लिविंग एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फर्स्ट लिविंग डोनर फॉर अक्यूट लिवर फेलियर, फर्स्ट लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बच्चों में, फर्स्ट डुअल लोब जहां हम दो डोनर से एक व्यक्ति में इम्प्लांट करते हैं, ये सारी चीजें करी गई है। एंड रिसेंटली महात्मा गांधी हॉस्पिटल इज वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विच हैज कंप्लीटेड 100 ट्रांसप्लांट्स एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। इवन एट महात्मा गांधी हम अगर देखें, हमारा मेजर कारण, ये हमने इतना प्रेजेंटेशन अल्कोहल और नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस पे हमने दिए, दो मुख्य कारणों पे इसीलिए स्लाइड्स ज्यादा बनाए और इसीलिए हार्प करा, क्योंकि ये सबसे मुख्य कारण है। अगर आप देखें तो 70 से 75% हमारे मरीज जिनमें ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी है, उनके लिवर खराब होने के मुख्य कारण थे अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस।
बाकी कुछ दूसरे कारण थे, हेपेटाइटिस बी एंड ऑटो इम्यून एंड बट कैरी। सिर्फ ट्रांसप्लांट करना इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सही समय पे ट्रांसप्लांट करा जाए तो ये जो आउटकम हमने हमारे हॉस्पिटल में दिखाए हैं वो 91% सक्सेस रेट है। सो मोर देन 91% सर्वाइवल अगर आप कर सकते हैं, अगर सही समय पे आप इस चीज का इलाज अडॉप्ट करें तो। सो एज आपको पूनम जी बता रही थी, प्लीज डू नॉट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन, हेवन नोज वी नीड देम हियर। तो जो भी आपके व्यक्ति अगर ब्रेन डेथ जिनकी हो रही है आपके करीबी रिश्तेदार में या जानकार में, तो प्लीज डू काउंसिल देम फॉर ऑर्गन डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ। नेक्स्ट हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया जिन्होंने ट्रांसप्लांट जिनका हो गया है, काफी सारी चीजें उनमें ट्रांसप्लांट होने के बाद मेडिकल फॉलो अप, ट्रीटमेंट, रेगुलर चेकअप, ये बहुत जरूरी है। एंड आई वुड लाइक टू एंड माय सेशन हियर with a big thanks to Mohan Foundation for organizing this such a lovely public awareness talk, and I'll be happy to take any questions if at all there are any. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Naimish. This was like an amazing session. Thank you and kudos to you कि आपने बहुत simple language में रखा. That is like an amazing thing. It was easier for everyone to understand. I hope others would agree with me. Okay. So there is one question, if what are the measures being taken by the government and the other bodies for preventive screening of liver? Yeah. So hepatitis B vaccination, hepatitis C vaccination, use of disposable needles, ये सारी चीजें government has been pushing. They have encouraged that at birth hepatitis B vaccination लगवाएं. Government is also pushing for hepatitis A vaccination, especially in children and young adults. इसके अलावा काफी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिलीज करी है, जैसे एटलीस्ट राजस्थान में आई कैन से कि माँ योजना यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो अभी रिक्रिश्चियन हुई है फ्रॉम चिरंजीवी, इस योजना में भी उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट इंक्लूड किया है, जो पेशेंट के लिए प्रैक्टिकली निःशुल्क यानी कि फ्री हो सकता है। अगर उनकी फैमिली में डोनर है तो उनको कॉस्ट कुछ भी नहीं आता, सारी कॉस्ट इज बोन बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकेशंस में भी उन्होंने काफी रेगुलेटरी रूल्स लाने के कारण जो दवाइयां पहले हम इंटरनेशनल जो इंपोर्ट करते थे, आज की तारीख में ये दवाइयां इंडियन कंपनीज बना रही है एट द कॉस्ट ऑफ इट इज ऑलमोस्ट 100 ऑफ द कॉस्ट जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कॉस्ट हो रही है। Plus, Mahatma Gandhi per se has also reduced and subsidized the cost of transplant at 15 lakhs only, जिसको भी they cannot afford a major cost. अगर आप इसको कंपेयर करें एनी इंटरनेशनल सेंटर जहाँ की कॉस्टिंग करीब रफली 2.5 से 3 करोड़ होती है, यहाँ पे द कॉस्ट इज ओनली एट 15 lakhs, which is mainly the cost is involved is the सामान यूज किया जाता है, कंज्यूमेबल्स यूज किए जाते हैं, दवाइयां जो यूज करी जाती है, उनकी एक जो मेजर कॉस्ट आती है, वो इसी के कारण हम इस चीज को कॉस्ट सब्सिडाइज कर पाए हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर निमिश, दिस इज वंडरफुल। आई थिंक बाकी स्टेट्स को भी फॉलो सूट करना चाहिए बिकॉज दिस इज लाइक liver transplant itself is a expensive procedure and it is unaffordable for many. तो सही तरीका यही है कि we can bring down the cost with the help of the government and other NGO partners so that the treatment is available for everyone. No one should die because of the lack of the treatment and medicines. जस्ट टू समराइज डॉक्टर मेहता, जो आपने बोला था कि हेपेटाइटिस जो है बेसिकली 5 तरीके के, आई थिंक वी कैन काउंट इट ऑन अ फिंगर्स नाउ। सो ए बी सी डी एंड ई। तो ए एंड ई जो है वो वाटर बॉर्न है एंड ड्यू टू फूड होता है ए और ई। बी एंड सी आर द वंस which are due to contact, which are transferred from mother to child, and apart from that due to contact with the infected fluid basically. And then we have hepatitis D. So now my question is कि hepatitis C जो है, it is more dangerous type that we know that it causes liver failure. Hepatitis B के लिए vaccination की वजह से अब काफी control हुआ है,
Still I can say that there is a landscape in India कि पूरा अभी भी control नहीं है. Is it because of the illiteracy, or is it because that government hasn't initiated much in the area कि हाँ आपको इस area में भी vaccination पे ज्यादा ध्यान देना है, like mass vaccination program जो बाकी diseases के लिए है. तो उस तरीके से उसके बारे में आप क्या कहें? सो हिपेटाइटिस आपने सही फरमाया. सो हिपेटाइटिस सी करीब 10-15 साल पहले यूज टू बी अ वेरी मेजर एंड ड्रेडफुल डिजीज, जो अगर एक बार हिपेटाइटिस सी जिसे हो गया उसका लिवर फेलियर एंड सिरोसिस होना ही निश्चित था. बट अब इतनी नई मेडिकेशंस आ गई है जिसमें हेपेटाइटिस सी का इलाज 99% ऑफ दिस पेशेंट्स का इलाज हो सकता है. 100 में से सिर्फ एक आध मरीज होते हैं जो आगे अब हेपेटाइटिस सी के कारण लिवर फेलियर में प्रोग्रेस करते हैं. सो उसका इलाज भी अवेलेबल हो गया है. सेकेंड इज हेपेटाइटिस बी. गवर्नमेंट हैज एक्चुअली पुश्ड फॉर वैक्सीनेशन एट बर्थ इवन इन रूरल एरियाज. यानी कि हमारे देश में काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जो सिटी से ना या पिछड़े एरियाज हैं जहाँ पे भी छोटे छोटे गांवों में और कस्बों में भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन एट बर्थ यानी कि जन्म पे ही लगाने के लिए वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई है ऑलरेडी. लेकिन द प्रॉब्लम इज कि कई सारे लोगों को लगता है कि हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे एक्सपोजर है नहीं, हम ऐसा अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व है नहीं, हमें बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है नहीं. बट आई थिंक कि हर एक बच्चों ने जब भी उनका बर्थ हो, हर एक माता पिता ने अपने बच्चों को जब भी बर्थ हो या जो भी अगर आपकी फैमिली में जिस किसी के यहाँ पे भी बर्थ हो रहा हो, उनको प्लीज एडवाइज, एजुकेट एंड ट्राई टू एनकरेज देम कि वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, जिससे हेपेटाइटिस बी हमारे देश में कम हो सकते हैं. बचपन में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन जो शेड्यूल होता है, कई सारे पेशेंट ऐसे जाते हैं और माता पिता हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन नहीं लगाया बिकॉज उनका मानना है कि हम तो काफी ध्यान रखते हैं, हमारे यहाँ पे तो बहुत ही हाइजीनिक चीजें करी जाती है. बट सर हम ये भूल रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर भी ट्रैवल करते हैं, कई बार हॉस्टल में रहते हैं और उनके खान पान में बाहर से कई बार वो खरीद के कुछ खाते हैं, तो वहां से उनको इन्फेक्शन लग सकता है. इसीलिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन जो इजीली अवेलेबल है, अगर ये हम लेते हैं तो इससे हमें हेपेटाइटिस ए और बी इन दोनों के वैक्सीनेशन से कितने हद तक प्रोटेक्शन मिल सकता है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट जैसा बड़ा ऑपरेशन क्लियरली अवॉइड हो सकता है. आई थिंक एक वी और आर द क्वेश्चन. कंट्री जो मॉनसून आते ही वी आर द कंट्री जो बाहर सबसे पहले सड़क पे खाने भागते हैं, तो ए एंड ई आर द मेजर कॉज ड्यूरिंग मॉनसून सबसे ज्यादा. दिस इज व्हाट. यस एक और ऑडियंस, वी कैन टेक द क्वेश्चन. सर मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन आपके लिए. तो एक उसमें डायबिटीज का जस्ट Yeah. रेड द So क्वेश्चन कि does दे आर. diabetic patient require regular liver test? How frequently? Yes, they do. I'm सो getting it done. सो Yeah. डायबिटीज फर्स्ट इट इज, ये बीमारी अभी बढ़ती जा रही है एंड आई एम श्योर आप सभी ने भी सुना होगा कि 2030 में इट इज प्रेडिक्टेड दैट इंडिया में बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो हमारे कई सारे पेशेंट्स आते हैं और हमारे नॉर्मल लोग डायबिटीज डायग्नोज होना शुरू हो गया है. सो इसको कैसे हम ट्रीट करें, इसको कैसे हम प्रोफाइलेक्टिकली आगे ऐसे बचाएं कि वो लिवर को डैमेज ना करे. सो डायबिटीज की रेगुलर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको मेडिकेशंस या इंसुलिन इंजेक्शन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो प्लीज उसे मिस ना करें, स्किप ना करें, सही समय पर इसको इसकी मेडिकेशंस का सेवन करें. एंड रेगुलर टेस्टिंग, यस, जो सवाल था कि क्या उन्होंने अपने लिवर के लिए रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए, यस, हर 6 महीने में उन्होंने अपने लिवर का टेस्ट करवाना चाहिए. क्योंकि अगर लिवर फैटी होता जा रहा है तो इनिशियल जो स्टेज होते हैं फैटी लिवर के, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ये फैटी लिवर के स्टेजेस है. ये तीनों स्टेज रिवर्सिबल है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फैटी लिवर जो है वो रिवर्सिबल होता है. अगर ग्रेड 3 के बियॉन्ड भी अगर हम यहाँ नहीं जागते हैं और इसका इलाज नहीं करवाते तो ये फैटी लिवर डिजीज आगे चलकर सिरोसिस में तब्दील हो सकता है. इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यूट्यूब पे आया है डॉक्टर निमिष. जी. दिस इज what does it mean fatty liver stage 2 for a 63-year-old person?
सो फैटी लिवर जैसे मैंने अभी बताया उसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 माइल्ड कहा जाता है, ग्रेड 2 मॉडरेट फैटी लिवर होता है, और ग्रेड 3 सीवियर फैटी लिवर डिजीज होता है। ये तीनों स्टेज रिवर्सिबल है। और आपने जैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है फॉर अ 63-year-old, इसमें आपके डॉक्टर को यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट। उसमें जानना बहुत जरूरी है वेदर द पेशेंट हैज गॉट डायबिटीज और नॉट। अगर डायबिटीज भी को एग्जिस्ट करता है तो दिस कैन बी डेंजरस, इसको इलाज करा जाए, ये सही समय है इसका इलाज करा जाए। अगर इसका इलाज अभी नहीं करेंगे तो आगे चल के ये फाइब्रोसिस और सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। अगर बाय एनी चांस ये अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली ही शुड स्टॉप दैट। और मैंने काफी सारी टिप्स आपको बताई थी, ये टिप्स अगर फॉलो करी जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस, जिससे आपका फैटी लिवर कम हो सकता है। तो क्योंकि ये स्टेज रिवर्सिबल है, प्लीज ट्राई एंड फॉलो द रेजिम सो दैट ये इवेंचुअली धीरे धीरे रिवर्स हो जाए और आगे चल के फाइब्रोसिस में तब्दील ना हो पाए। I think, Veena, the question that you had asked, what care to be taken for fatty liver patient, has been covered in this question. So in case you need some more details, please mention it here. एक और क्वेश्चन है, लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स नीड टू टेक टैबलेट्स रेगुलरली, आई थिंक इम्यूनोसप्रेसेंट्स की बात कर रहे हैं, कैन दिस पेशेंट सफर विद डायबिटीज इन फ्यूचर? सो यस, जो भी पेशेंट जिनका भी लिवर ट्रांसप्लांट हो गया है उनको दवाइयां, इम्यूनोसप्रेशन जो दवाइयां होती हैं, इम्यूनोसप्रेशन का मीनिंग होता है एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस, यानी कि आपका शरीर उस नए लिवर को रिजेक्ट ना करे, इसीलिए कुछ दवाइयां चलाई जाती है। लेकिन उस दवाइयों का सही मात्रा में रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है वो इम्यून आपकी सिस्टम को सप्रेस करता है। हम ये भी नहीं चाहते कि आपको इन्फेक्शन लग जाए, जाकि आपकी बॉडी में जो नॉर्मल क्षमता होती है इन्फेक्शन से लड़ने की वो खत्म हो जाए। बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि आपका शरीर आपके नए लिवर के साथ ना लड़े। तो इसीलिए उसकी लेवल्स मेंटेन करना, उसका रेगुलर डोज एडजस्ट करना, कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, आपको छोटा मोटा इन्फेक्शन अगर हुआ तो उसमें लिवर एंजाइम्स चेंज हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकते हैं। इसीलिए आपके डॉक्टर जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है या जो केयर ले रहे हैं उनसे आपका संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। रेगुलर टेस्टिंग जैसे जैसे वो बताए करना जरूरी है, क्योंकि उसी समय वो डोजेज मॉडिफिकेशन, दवाइयों का डोज का जो मॉडिफिकेशन होता है वो एडजस्ट करके आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। उमेश धवालिकर, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yeah, good morning, doctor. गुड मॉर्निंग। Yeah, I am 55 presently, and I've completed 9 years for my liver transplant. That's nice. Right now, I have a specific question. Presently, I am diagnosed with osteoporosis, especially the lumbar spine is showing a very low score. So, after my doctor's advice, I've consulted the orthopedician and started the medication. I want to know about two things. Number one is what is the best care I can take in terms of diet and exercise, and secondly, is this reversible? So there are two things involved. One is you have had liver transplant, Umesh ji. So again, congratulations. 9 years is a good time period, and we have got so many patients who have crossed 15 years. So I'm sure we'll be again talking to you a few years down the line, and we'll hear that you have crossed 20 years plus. The second part is because you are already taking these medications, which are anti-rejection and immunosuppressant medications, they do have some side effects. But आपको इसके साथ osteoporosis भी हुआ है, so that osteoporosis के लिए you need to take vitamin D and calcium. These are the two important things required for the bone. आपके bone के लिए ये बहुत जरूरी है, vitamin D and calcium. So take these as prescribed by your doctor. Third is regarding your exercises, which you are asking me. So whatever exercises, if you are going to a gym or if there's a trainer who is asking, who is helping you out with these exercises, please do tell the trainer that you should not be doing back exercises because of the osteoporosis.
you may end up causing a vertebral fracture, जिसमें आपको तकलीफ बहुत हो सकती है। इसीलिए बैक एक्सरसाइजेस बिल्कुल ना करें। वॉकिंग इज द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट एक्सरसाइज possible for diabetes, osteoporosis, liver disease, hypertension. सब में सेफेस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग। सो वॉकिंग तो आप बिल्कुल, अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज गो अहेड एंड कंटिन्यू विथ वॉकिंग एटलीस्ट 5 kilometers per day. You can start with a shorter distance initially and then later on increase the distance as per your comfort. Any advice on the diet? Any special diet which can help me? सो अगेन आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए डाइट में कैल्शियम जो होता है विच दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, प्लस विटामिन डी, बिकॉज अगर आपको सन लाइट एक्सपोजर नहीं है तो वंस अ वीक विटामिन डी जरूर लीजिएगा। बट द नॉर्मल डाइट फॉर योर लिवर इज अवॉइड फैटी फूड, जो हम अदरवाइज भी रेगुलरली अवॉइड करना चाहिए। एंड फ्रॉम व्हाट आई कैन सी योर हेल्थ, यू सीम टू बी प्रीटी मच इन गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। आपने अपने आप को अच्छा मेंटेन किया है। So continue doing that. Eat normal healthy food. Do not eat anything which is uncooked. Raw कुछ भी मत खाइएगा, cook करके खाइए. You are less likely to develop any problems. Good luck. Okay. Thank you so much, doctor. Dr. Nemish, I have few questions. Yes, please go ahead. Yeah. So one thing is we spoke about alcoholic fatty liver disease. जी, We do say that alcohol is not good for health, but you and me both know that that's not the scenario in today's world. So is there anything we can classify as safe limits? so usually when we try and argue up to 80 ml of alcohol, if they consume more than that per day, that is what is going to lead to damage because of alcohol liver disease. Now alcohol should not be consumed on empty stomach. ये बहुत ही important है, because empty stomach में alcohol liver को तो डैमेज करता है, स्टमक को भी डैमेज करता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, so it goes pretty much directly into your liver and damages your liver significantly. इसीलिए कुछ खाना बहुत जरूरी है अगर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो। थर्ड, अल्कोहल, कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ बियर पीता हूं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बियर में भी अल्कोहल होता है, and you have to calculate what is the percentage of alcohol in that beer. So कई बार बियर 4 pint ले लेते हैं and then they think कि इसमें तो मैंने बियर ही पिया है। So please don't be under that false impression, इस भ्रम में ना रहे कि बियर अल्कोहल नहीं है। Beer also has alcohol. In some cases it can have more alcohol than whiskey and wine. So it depends on what type of alcohol भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। देसी दारू इज वर्स, जो लोकल कई बार लोग लेते हैं, ठर्रा लेते हैं, देसी दारू पीते हैं, which is worse. Some of the whiskeys may be okay, but again it would be up to in moderation. अगर आपने एक पेग लिया, not a Patiala peg, so then that may be okay. This is mainly for men. जो women में देखा गया है, females में देखा गया है, anything more than 1 peg 30 ml से ज्यादा is considered as dangerous, because females में लिवर डैमेज कहीं ज्यादा होता है अल्कोहल के सेवन की वजह से। That's what, like, we all have this in mind ki it is all about like, feminism rather than the thing. Okay, one more question. I think we haven't touched it, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि लोग डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स, ये वो हर चीज का मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में कंजम्पशन हो रहा था, वेदर इट इज लाइक कि काली मिर्ची बॉईल करके पी रहे हैं आप, कभी कुछ ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर टर्मरिक, जिंजर, जो भी आप ले रहे हैं। लिवर इटसेल्फ इज एन ऑर्गन विच इज डिटॉक्सिफाइंग। लिवर खुद बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। देन व्हाई इन द मार्केट देयर आर प्रोडक्ट्स विच से दैट detoxify your liver, and there are products which are being sold? So I just want little awareness on that. So thank you so much for bringing up this question. This is very very important, because कई लोगों को लगता है कि मैं अगर अल्कोहल ले लेता हूँ and then next day if I consume detoxifying products या tablets, मेरा liver ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल गलत है ये. So there are lot of products available. I do not wish to name them unfortunately because उसमें उनके marketing and pharma companies come into the play. तो उसमें कई सारे ऐसे products हैं जिनमें liver detoxifying लिखा है, but actually we have seen during COVID period इस प्रोडक्ट का ज्यादा सेवन करने से लिवर फेलियर हुआ है और लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी है. सो प्लीज डू नॉट गो फॉर ऑल दिस. ये मार्केटिंग गिमिक्स है, ये अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ये सेल्स पिच है. अगर आप ये नॉर्मल हेल्थी लाइफस्टाइल जो आज के लेक्चर्स में सारा मैंने बताया, नॉर्मल हेल्थी लाइफस्टाइल, अल्कोहल अगर ले ही रहे तो मॉडरेशन में रखिएगा, एक्सरसाइजेस, हैव अ कंट्रोल डाइट, एंड अगर आपको कुछ बीमारी है तो प्लीज फॉलो अप विथ योर डॉक्टर. अगर इन चीजों का हम ख्याल रखें तो आपको लिवर डिटॉक्सिफाइंग मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है. ये टर्मरिक इज ऑल्सो वेरी गुड. देयर इज करक्यूमिन के लिए बहुत सारे नाउ ट्रायल्स हुए हैं. इट इज सपोज टू बी अ गुड प्रोडक्ट, बट अगेन लेट मी वॉर्न यू दैट एवरीथिंग कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन, जैसे हमारे पुराने जमाने में कहा जाता था, कई सारे सेजेस और ऋषि मुनियों ने कहा है, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. सो टर्मरिक अच्छा है या करक्यूमिन अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी को कंज्यूम करूं. उसकी सही मात्रा में, देयर इज अ लिटिल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी फॉर अ डेली रिक्वायरमेंट. उसको अगर हम सेवन नॉर्मली करते हैं तो आपको ऊपर से और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है. Thank you so much, Dr. Nemish. And I guess in future we need to talk about pediatric liver transplants and all, because it is itself a different topic. And Absolutely. I would be happy, like in future we can reconnect on this topic. And if there are no more questions, are there any more questions, so we can wrap up the session, please? I guess there are no more questions. Thank you so much, Dr. Nemish, once again, and highly obliged that you could take out time to be here. Somebody has Okay. raised a hand. Okay, We okay, are yeah. happy to answer that. Yeah, Khalda, please go ahead with your question. You can unmute yourself. I think this is the last one we'll be taking. Khalda, please. Yeah, am I audible? Yeah, you are audible. Please. Yeah, so much and very good morning, and really wants to give a big thanks to Triumph and Dr. Sir to presenting this much of knowledgeable session. I'm a kidney transplant patient, successfully 12 years going to be completed on this 1st of August. Congratulations. Yeah, and this is my cadaveric transplant. I just want to have one question, as I do exercises also on a regular basis, yoga and some other kind of movements. As sir said, walking is the best exercise in all the forms and all kind of, it consists all kind of body movements. So if I'm having swelling in my feet, especially in the ankle area, sometimes it happens if I'm traveling long or sitting for a long hours. So swelling comes in my lower legs and feet. So is it okay to walk in such condition? Because whenever I do some more walking or walk kind of thing, I used to get cramps while sleeping at the night or in the early morning hours. So should I avoid walking in such condition, or is it okay to give that much of movement? Right, Tabassum ji. So congratulations first of all for completing 12 years post kidney transplant. Very nice. I think you have taken very good care of yourself. बहुत अच्छी बात है. एंड जैसे आपने कहा आपके लेग में, एंकल में स्वेलिंग आ जाती है कई बार. सो उसका कारण पता करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एंकल स्वेलिंग कई बार किडनी का खराब होने का लक्षण होता है. सो आई वुड सजेस्ट दैट आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी आपको ट्रीट कर रहे हैं, प्लीज उनके संपर्क में रहें. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, कई बार वो आप लंबा समय चलने से या पैर लटकता रखने के कारण वहां पानी जमा हो जाता है, इडीमा हो जाता है. सो इसको आप, हाउ डू यू टैकल इट? वन, जब भी आप बैठे यू कैन कीप योर लेग एट अ लिटिल हायर लेवल रादर देन डैंगलिंग डाउन, लटकता हुआ ना रखें. सेकेंड, कुछ स्टॉकिंग्स अवेलेबल है. अगर आपको लग रहा है कि आपको लंबे समय तक अगर चलना है या आपके पैर लंबे समय तक सिटिंग है, डू वेयर स्टॉकिंग्स. अगर आप लंबे समय ट्रैवल करते हैं तो आपने बीच में अपने उठकर, जैसे हम फ्लाइट्स में एडवाइस करते हैं,
लंबे समय तक बैठे मत रहें, आप डू वॉक करें एंड आपके पैरों को एक्सरसाइजेस जरूर दें. सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. थर्ड पार्ट आप जो पूछ रहे थे, कैन आई कंटिन्यू एक्सरसाइजेस? यस, उसमें एक्सरसाइज से उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू हैव सिग्निफिकेंट इडिमा, यानी कि आपका स्वेलिंग कहीं ज्यादा है, उस समय अगर आप एक्सर्ट ज्यादा करेंगे, वॉकिंग ज्यादा करेंगे, तो आपको क्रैम्प्स डेफिनेटली होगा. सो उस दरमियान या उस पॉइंट पे आप, जिस दिन आपको लग रहा है कि आपके पैरों की सूजन ज्यादा हो गई है, आपने स्टॉकिंग्स नहीं पहने हैं, उस समय आप वॉकिंग को अवॉइड कर सकते हैं. बट अगेन आई वुड एडवाइज, स्वेलिंग होना पैरों में ये नॉर्मल चीज नहीं है, स्पेशली पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट. You should have a consultation with your nephrologist once. All right, Tabassum ji? Thank you, sir. Sure. Thank you so much. So now we'll wind up the session. I think it's already more than an hour and people would get have started dropping off. So yeah, thank you so much, Dr. Nemish, once again. And I would just take this opportunity. One second. Yeah. So be the light in someone's life, be an organ donor, that we have already said, and we request you again and again that do sign to pledge your organs. And I would take this opportunity to thank SBI Foundation once again, Mohan Foundation, and Triumph. And thank you, audience, for being such a lovely audience and being here on a Saturday morning. That's more important right now. It's a weekend. So enjoy your weekend. And thank you, Dr. Nemish, once again. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you.